Hello guys, how are you all? Welcome to my YouTube channel. My name is Arun Tomar and I hope आप सबने पिछले लेक्चर का सारी रिवाइज कर लिया होगा, तभी आप आज के लेक्चर में जुड़े हैं। और जो भी स्टूडेंट हमारे साथ इस लेक्चर में नहीं जुड़ रहे हैं तो उनके लिए रिक्वेस्ट है कि वो जाके पहले स्टार्टिंग के सारे लेक्चर देख ले, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ताकि आपके मन में कोई भी डाउट न रहे, आपके कॉन्सेप्ट में अच्छी पकड़ हो सके और उसी के साथ साथ आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से आगे बढ़ा सके। So let's begin our lecture without any delay, and I think we have learned 23 rules and our last rule was wood. We have already done a good revision of our starting 10 rules. In our today lecture we will only do revision of our last 13 rules. So let's begin our lecture, and our first rule is found of. Whenever you try to showcase some likable habit of something or someone, so there we use of this rule. And our next rule is seek of. Whenever you try to showcase that he is feeling boring or he is feeling irritating or somebody is unwell, so there we use of this rule. And our next rule is afraid. Whenever we try to showcase some fairness thing that he has fear of him or he has fear of something, he is getting fearing, so there we use of this rule. And our next rule is dare to. Whenever you try to showcase that he has dare or he has capabilities or he has some abilities or he has guts to do all those things, so in this situation we use of this rule. And our next rule is how to. Whenever you ask a question to someone that do you know how to do this thing, then he replies to us that yes, I know how to do this thing, then we continuously ask a question to him that how do you know how to do this thing, then he replies back to us, I know how to do this thing because I have learned it, and you also can do if you learn. And our next rule is should and must. Whenever we ask a question to someone or that should you do this thing or not, whenever you try to give a suggestion or advice to someone, in this situation we use of this rule. And our next rule is bound to. Whenever you try to set a boundary, foundation, limits or limitation, in this situation we use of this rule. And our next rule is insist on. Whenever you try to put a pressure on words on something, or whenever you try to do a polite request on someone, there we use of this rule. And our next rule is order. It we use that whatever do you have, it is working properly or not. To find out in this situation we use of this rule. And our next rule is have been. Whenever whatever you have been doing from a long particular time or from exact moment, to find out that actual time duration, there we use of this rule. And our next rule is able to. Whenever you try to mention that you are completely present here and you want to showcase your capabilities that you can do these things, so there we use of this rule. And our next rule is try to. Whenever we initiate for something, it can be any activity or it can be anything, so there we use of this rule. And our last rule that we have learned yesterday, which is would, that you want to do this thing by yourself or not, and it we also use to mention the future events. Now let's do a revision of our whole the rules. And our first example is that are you fond of playing basketball? कि क्या तुम्हें बास्केटबॉल खेलने का शौक है? If you agree then you will say that yes, I am fond of playing basketball, कि हाँ मुझे बास्केटबॉल खेलने का शौक है. But if you deny then you will say no, I am not fond of playing basketball, कि नहीं मुझे बास्केटबॉल खेलने का शौक नहीं है. Then you will ask a question to that, why are you not fond of playing basketball, कि तुम्हें बास्केटबॉल खेलने का शौक क्यों नहीं है? Then you will say that I am not fond of playing basketball because I am fond of playing cricket, क्योंकि मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है, इसलिए मुझे बास्केटबॉल खेलने का शौक नहीं है और इसलिए मैं इस चीज को करने का शौकीन नहीं हूँ. Then you will ask the next question to you that are you sick of playing basketball, कि क्या तुम बास्केटबॉल खेलने से दुखी या परेशान हो? If you agree then you will say that yes, I am sick of playing basketball, कि हाँ मैं बास्केटबॉल खेलने से दुखी या परेशान हूँ. But if you deny then you will say no, I am not sick of playing basketball, कि नहीं मैं बास्केटबॉल खेलने से दुखी या परेशान नहीं हूँ. Then we will ask a question to that, why are you not sick of playing basketball, कि तुम बास्केटबॉल खेलने से दुखी या परेशान क्यों नहीं हो? Then you will reply to us that I am not sick of playing basketball because I have a good physical fitness, क्योंकि मेरी फिटनेस अच्छी है इसलिए मैं बास्केटबॉल खेलने से या फिर कोई भी गेम खेलने से दुखी या परेशान नहीं हूँ. Then we will move forward to our next rule, which is that do you afraid to play basketball, कि क्या तुम बास्केटबॉल खेलने से डरते हो? If you agree then you will say that yes, I play to basketball, कि हाँ मैं बास्केटबॉल खेलने से डरता हूँ. But if you deny then you will say no, I don't afraid to play basketball, कि नहीं मैं बास्केटबॉल खेलने से नहीं डरता हूँ. Then you will ask question to it,
वाई डू यू नॉट afraid टू प्ले बास्केटबॉल, कि तुम बास्केटबॉल खेलने से या फिर कोई गेम खेलने से क्यों नहीं डरते हो। Then you will reply to us that because I am a good player of every game, that's why I don't afraid to play any game, क्योंकि मैं किसी भी गेम का एक अच्छा खिलाड़ी हूँ इसलिए मैं कोई भी गेम खेलने से नहीं डरता हूँ। Now let's move forward to our next rule, which is that do you dare to play basketball, कि क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम बास्केटबॉल खेल सको। If you agree then you will say that yes I dare to play basketball, कि हाँ मुझ में हिम्मत है कि मैं बास्केटबॉल खेल सकूँ। बट इफ यू डिनाई देन यू विल से नो आई डोंट डेयर टू प्ले बास्केटबॉल, कि नहीं मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं बास्केटबॉल खेल सकूं। देन यू विल आस्क अ क्वेश्चन टू दैट व्हाई डू यू नॉट हैव डेयर टू प्ले बास्केटबॉल, कि तुम में इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि तुम बास्केटबॉल खेल सको। देन यू विल रिप्लाई टू अस बिकॉज आई एम नॉट अ गुड प्लेयर और आई एम नॉट फिजिकली फिट, दैट्स व्हाई आई डोंट डेयर टू प्ले बास्केटबॉल, क्योंकि मैं एक अच्छा खिलाड़ी नहीं हूँ और मैं फिजिकली फिट नहीं हूँ इसलिए मुझे डर लगता है या फिर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं बास्केटबॉल खेल सकूं। देन यू विल मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट रूल, व्हिच इज हाउ टू गेट। एज एन एग्जाम्पल आई एम आस्किंग टू डू यू नो हाउ टू प्ले बास्केटबॉल, कि क्या तुम्हें पता है कि बास्केटबॉल कैसे खेलते हैं। इफ यू देन यू विल से दैट यस आई नो हाउ टू प्ले बास्केटबॉल, बट इफ यू डिनाई देन यू विल से नो आई डोंट नो हाउ टू प्ले बास्केटबॉल, कि नहीं मुझे नहीं पता कि बास्केटबॉल कैसे खेलते हैं। देन आई विल आस्क अ क्वेश्चन टू दैट व्हाई डू यू नॉट नो हाउ टू प्ले बास्केटबॉल, कि तुम्हें क्यों नहीं पता कि बास्केटबॉल कैसे खेलते हैं। देन यू विल रिप्लाई टू मी दैट आई डोंट नो हाउ टू प्ले बास्केटबॉल बिकॉज आई हैव नॉट लर्नड इट, क्योंकि मैंने चीज सीखी नहीं है इसलिए मुझे नहीं पता है। देन आई विल आस्क नेक्स्ट क्वेश्चन टू दैट शुड यू प्ले बास्केटबॉल, कि क्या तुम्हें बास्केटबॉल खेलनी चाहिए। इफ यू एग्री देन यू से दैट यस आई शुड प्ले बास्केटबॉल और वी मस्ट प्ले बास्केटबॉल, कि हाँ हमें बास्केटबॉल खेलनी चाहिए या फिर मुझे बास्केटबॉल खेलनी चाहिए। बट इफ यू डिनाई देन यू विल से नो वी शुड नॉट प्ले बास्केटबॉल, कि नहीं हमें बास्केटबॉल नहीं खेलनी चाहिए। देन आई विल आस्क अ क्वेश्चन टू दैट व्हाई वी शुड नॉट प्ले बास्केटबॉल और व्हाई शुड वी नॉट वी प्ले बास्केटबॉल, कि हमें बास्केटबॉल क्यों नहीं खेलनी चाहिए। देन यू विल रिप्लाई टू अस वी शुड नॉट प्ले बास्केटबॉल बिकॉज वी शुड फोकस ऑन आवर स्टडी, क्योंकि हमें अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए इसलिए हमें बास्केटबॉल नहीं खेलनी चाहिए। नाउ आई विल आस्क नेक्स्ट क्वेश्चन टू दैट आर यू बाउंड टू प्ले बास्केटबॉल, कि क्या तुम्हारे ऊपर ऐसी कोई लिमिटेशन है कि तुम्हें बास्केटबॉल खेलनी है। इफ यू एग्री देन यू विल से दैट यस आई एम बाउंड टू प्ले बास्केटबॉल, कि हाँ मेरे ऊपर ऐसी लिमिटेशन या फिर मैं बाध्य हूँ बास्केटबॉल खेलने के लिए। बट इफ यू डिनाई देन यू विल से नो आई एम नॉट बाउंड टू प्ले बास्केटबॉल, कि नहीं मुझे ऊपर ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है कि मैं बास्केटबॉल खेलूं। देन यू विल आस्क अ क्वेश्चन टू दैट व्हाई आर यू नॉट वांट टू प्ले बास्केटबॉल, कि तुम्हारे ऊपर ऐसी कोई लिमिटेशन क्यों नहीं है कि तुम बास्केटबॉल खेलो। देन यू विल रिप्लाई टू अस आई एम नॉट बाउंड टू प्ले बास्केटबॉल बिकॉज आई एम बाउंड टू प्ले क्रिकेट और आई एम बाउंड टू प्ले एनी अदर गेम, कि मेरे ऊपर इस चीज को करने की लिमिटेशन नहीं है पर मेरे ऊपर दूसरी चीजों को करने की लिमिटेशन या फिर पाबंदी है। देन आई आस्क नेक्स्ट क्वेश्चन टू दैट डू यू इंसिस्ट ऑन योर पेरेंट्स टू प्ले बास्केटबॉल विद यू, कि क्या तुम अपने पेरेंट्स को इंसिस्ट करते हो कि वो तुम्हारे साथ बास्केटबॉल खेलें। इफ यू एग्री देन यू से दैट यस आई इंसिस्ट ऑन माय पेरेंट्स टू प्ले बास्केटबॉल विद मी, कि हाँ मैं अपने पेरेंट्स को इंसिस्ट करता हूँ कि वो मेरे साथ बास्केटबॉल खेले। बट इफ यू डिनाई देन यू से नो आई डोंट इंसिस्ट ऑन माय पेरेंट्स टू प्ले बास्केटबॉल विद मी, कि नहीं मैं अपने पेरेंट्स को इंसिस्ट नहीं करता कि वो मेरे साथ बास्केटबॉल खेले। देन वी विल आस्क अ क्वेश्चन टू दैट व्हाई डू यू नॉट इंसिस्ट ऑन योर पेरेंट्स टू प्ले बास्केटबॉल विद यू, कि तुम अपने पेरेंट्स को इंसिस्ट क्यों नहीं करती कि वो तुम्हारे साथ बास्केटबॉल खेले। देन यू विल रिप्लाई टू अस आई डोंट इंसिस्ट ऑन माय पेरेंट्स टू प्ले बास्केटबॉल विद मी बिकॉज दे डोंट हैव एज मच टाइम टू वेस्ट, क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं है कि वो बर्बाद करे, इसलिए मैं उन्हें इंसिस्ट नहीं करता कि वो मेरे साथ बास्केटबॉल खेले। देन आई विल आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू दैट डू यू हैव वॉच, कि क्या तुम्हारे पास एक घड़ी है। इफ यू एग्री देन यू से दैट यस आई हैव वॉच, कि हाँ मेरे पास एक घड़ी है। इफ यू डिनाई देन यू से नो आई डोंट हैव वॉच बट फॉर दिस मोमेंट लेट्स सपोज दैट डू यू हैव ए वॉच, कि क्या तुम्हारे पास एक घड़ी है एंड यू आर अग्रीइंग विद आवर क्वेश्चन, कि हाँ मेरे पास एक घड़ी है। नाउ वी आर आस्किंग टू यू दैट इज योर वॉच वर्किंग प्रॉपरली, कि तुम्हारे पास जो घड़ी है वो अच्छे से काम कर रही है। इफ इट इज देन यू विल से यस इट इज वर्किंग प्रॉपरली, कि हाँ वो अच्छे से काम कर रही है। और इट इज कंप्लीटली इन ऑर्डर, कि हाँ वो अच्छे से ठीक से काम कर रही है और वो पूरी तरीके से ऑर्डर में है। बट इफ इट इज नॉट देन यू विल से कि नहीं वो अच्छे से काम नहीं कर रही है या फिर वो पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, दैट इट इज कंप्लीटली आउट ऑफ ऑर्डर। नाउ वी विल आस्क नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू दैट हैव यू बीन प्लेइंग बास्केटबॉल सिंस लास्ट 1 ईयर, कि क्या तुम पिछले साल से लगातार बास्केटबॉल खेल रहे हो। इफ यू एग्री देन यू विल से दैट यस आई हैव बीन प्लेइंग बास्केटबॉल सिंस लास्ट 1 ईयर, कि हाँ मैं पिछले 1 साल से बास्केटबॉल खेल रहा हूँ। बट इफ यू डिनाई देन यू विल से नो आई हैव नॉट बीन प्लेइंग बास्केटबॉल सिंस लास्ट 1 ईयर, कि नहीं मैं पिछले 1 साल से बास्केटबॉल नहीं खेल रहा हूँ। देन वी विल आस्क अ क्वेश्चन टू दैट व्हाई हैव यू नॉट बीन प्लेइंग बास्केटबॉल सिंस लास्ट 1 ईयर, कि तुम पिछले 1 साल से बास्केटबॉल क्यों नहीं खेल रहे हो। देन यू विल रिप्लाई टू अस दैट आई हैव नॉट बीन प्लेइंग बास्केटबॉल सिंस लास्ट 1 ईयर बिकॉज
आई हैव बीन कंटिन्यूसली प्लेइंग क्रिकेट सिंस लास्ट 2 ईयर, क्योंकि मैं पिछले 2 साल से लगातार क्रिकेट खेल रहा हूँ, इसलिए मैं पिछले 1 साल से बास्केटबॉल नहीं खेल रहा हूँ। देन वी विल आस्क नेक्स्ट क्वेश्चन टू दैट, आर यू एबल टू प्ले बास्केटबॉल, कि क्या तुम में इतनी हिम्मत या फिर कैपेबिलिटी है, या फिर क्या तुम क्रिकेट या फिर बास्केटबॉल खेल सकते हो। इफ यू आर प्रेजेंट देन यू विल से दैट यस आई एम एबल टू प्ले बास्केटबॉल बिकॉज आई एम प्रेजेंट हियर दैट्स व्हाई आई कैन प्ले, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी प्रेजेंट हूँ इसलिए मैं बास्केटबॉल खेल सकता हूँ। बट इफ आई एम एब्सेंट हियर सो आई कांट प्ले बास्केटबॉल, और आई एम अनेबल टू प्ले बास्केटबॉल, कि अगर मैं यहाँ पे नहीं रहूँ तो मैं बास्केटबॉल नहीं खेल पाऊंगा। देन यू विल आस्क क्वेश्चन टू दैट, वेयर विल यू बी, कि तुम कहाँ पे होगे। देन यू विल से दैट वेयर आई विल गेट वर्क और वेयर आई विल हैव टू, क्योंकि जहाँ भी मुझे काम करना पड़े मैं वहाँ पर हूँ। दैट्स व्हाई आई विल बी अनेबल टू प्ले बास्केटबॉल, और मैं वहाँ पे बास्केटबॉल नहीं खेल पाऊंगा। देन यू विल आस्क नेक्स्ट क्वेश्चन टू दैट, डू यू ट्राई टू प्ले बास्केटबॉल, कि क्या तुम बास्केटबॉल खेलने का प्रयास करते हो। इफ यू एग्री देन यू विल से दैट यस आई ट्राई टू प्ले बास्केटबॉल, कि हाँ मैं बास्केटबॉल खेलने का प्रयास करता हूँ। बट इफ यू डिनाई देन यू विल से नो आई डोंट ट्राई टू प्ले बास्केटबॉल, कि नहीं मैं बास्केटबॉल खेलने का प्रयास नहीं करता हूँ। देन यू विल आस्क क्वेश्चन टू दैट, व्हाई डू यू नॉट ट्राई टू प्ले बास्केटबॉल, कि तुम बास्केटबॉल खेलने का प्रयास क्यों नहीं करते हो। देन यू विल रिप्लाई टू अस, बिकॉज आई डोंट हैव एज मच स्टैमिना टू प्ले, दैट्स व्हाई आई डोंट ट्राई टू प्ले बास्केटबॉल, क्योंकि मेरे अंदर इतना स्टैमिना नहीं है खेलने के लिए, दैट्स व्हाई मैं बास्केटबॉल खेलने का प्रयास नहीं करता हूँ। देन आई आस्क क्वेश्चन टू दैट, वुड यू प्ले बास्केटबॉल, कि क्या तुम बास्केटबॉल खेलोगे। इफ यू ऑलरेडी मेक अ डिसीजन बाय योरसेल्फ देन यू विल से दैट यस आई वुड प्ले बास्केटबॉल, कि हाँ मैं ये चीज करूंगा। बट इफ यू डिनाई देन यू विल से नो आई वुड नॉट प्ले बास्केटबॉल, कि नहीं मैं चीज नहीं करूंगा। देन यू विल आस्क क्वेश्चन टू दैट, व्हाई वुड यू नॉट प्ले बास्केटबॉल, कि तुम बास्केटबॉल क्यों नहीं खेलोगे। देन यू विल रिप्लाई टू अस, आई वुड नॉट प्ले बास्केटबॉल बिकॉज आई डोंट हैव प्लान, क्योंकि मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है इसलिए मैं बास्केटबॉल नहीं खेलूंगा। नाउ लेट्स कम टू आवर टुडे रूल व्हिच इज एवर, whatever you have done in your whole life, to mention whole the things there we use of this rule. And its question structure is that, have you ever plus done plus any action, कि क्या तुमने कभी ये चीज की है in your entire life or in your whole life. If you agree then you will say that yes I have done this thing, and it can be your any action, कि हाँ मैंने ये चीज की है। But if you deny then you will say no I have not done this thing, कि नहीं मैंने ये कभी ये चीज नहीं की है। But it will be completely wrong. In this question we cannot use this sentence that I have done this thing or no I have not done this thing. This will be completely wrong and we have to avoid to answer this. We have to use only that not yet or not so far, कि क्या तुमने चीज किया है, और आपका रिप्लाई होगा कि हाँ मैंने चीज किया। बट इफ देन यू से नो, अभी तक नहीं हो और अभी तक फिलहाल में नहीं। एंड योर एग्जांपल कैन बी दैट, have you ever helped the poor, or it can be or have you ever saved water, have you ever played cricket। As an example I am asking to that have you ever gone to Agra, कि क्या तुम कभी आगरा गए हो। If you agree then you will say that yes I have gone to Agra, and you also can use once twice thrice, कि हाँ मैं एक बार दो बार तीन बार आगरा गया हूँ। But if you deny no not yet, कि नहीं मैं अभी तक आगरा नहीं गया हूँ, you cannot repeat whole the sentence like in this form, otherwise your answer will be wrong. We have to be focused that what the answer we want to convey to the speaker. And our next example will be that have you ever played cricket, कि क्या तुमने कभी क्रिकेट खेला है। If you agree then you will say that yes I have played cricket once in my life, कि मैंने अपनी जिंदगी में एक बार क्रिकेट खेला है। But if you deny then you will say not yet, कि अभी तक मैंने क्रिकेट नहीं खेला है। Now let's see our last example of our today lecture which is that have you ever saved water in your life, कि क्या तुमने अपनी जिंदगी में पानी बचाया है।
If you agree, then you say that yes, I have saved water once in my life, कि हाँ मैंने अपनी जिंदगी में एक बार पानी बचाया है. But if you deny, then you say not yet, कि अभी तक नहीं, or not so far, both have the same meaning. And we also can ask that why have you not saved water, कि तुमने पानी क्यों नहीं बचाया. If you agree, then you say that I have not saved water because I didn't get chance to save water, क्योंकि मुझे ऐसा कोई चांस नहीं मिला पानी बचाने का, इसलिए मैंने कभी पानी नहीं बचाया. We also can combine all these rules in the one sentence. So I think you like this session and I hope you will do revision of our whole the rules and our concept. So let's finish this lecture and I meet you in the next session.